Very good morning, my dear students. How are you? I hope you all are waiting for the next chapter. So, I am starting here in this session, Unit 10 Coming Home to Delhi. Okay, are you ready? But before starting, I want to talk to you. Students, your half yearly exam completed, right? And maybe possible your school will be opened next month, means in the first week of February, right? And thereafter you will give your annual exam offline, okay? And you will get marks on your copy, means you have to complete your copy work so that you could get marks. So children, be ready for coming to school, but till the school opens, we have to complete English literature. There are remaining, I think, two chapters. One is Coming Home to Delhi, and one more. Okay. Today I am starting Unit 10, Coming Home to Delhi. So, before starting the chapter, I would like to read about the author. Madhur Jaffrey, now regarded by many as the world authority on Indian food, is an award winning actress and best selling cookery author. Her first book, An Invitation to Indian Cookery, was published in 1973, and her TV show, Madhur Jaffrey's Indian Cookery, for the BBC made her a household name. She has appeared, sorry, what is written here? She has, I couldn't see. She has appeared. She has appeared uh, in over 20 films, means she has acted in 20 films, more than 20 films, including Merchant, Ivory's Heat and Dust, and written over 15 cookery books, including Madhur Jaffrey's Ultimate Curry Bible and Curry Easy. It means मधुर जाफरी एक वेल नोन एक्ट्रेस हैं, कह सकते हैं उनको एक शी इज़ अ वेल नोन एक्ट्रेस, एंड शी इज़ एज वेल एज शी इज ऑल्सो अ राइटर. ठीक है. वॉट शी रोट, वॉट शी इज़ राइटिंग बुक्स ऑन कुकरी, एंड शी इज़ एन एक्सपर्ट in India. She is an expert of cooking lots of things, Indian things, Indian dishes, Asian, but as well as she has she has been an expert in Asian dishes also, and world vegetation cuisine. उन्होंने दुनिया भर की जो भी वेजिटेबल्स हैं उन पर भी बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ट्राई किया हुआ है बताना, यानी कि उस पर कुकिंग कैसे की जाए ये बताया हुआ है. तो अब हम देखते हैं जो ये कमिंग होम टू दिल्ली है बच्चों, ये जो है उनका एक बुक थी अ टेस्ट ऑफ इंडिया, इसमें से लिया गया है ये. ठीक है. कमिंग होम टू दिल्ली यानी कि कमिंग होम टू दिल्ली, वो दिल्ली आ रही हैं. तो क्या देखते हैं क्या होता है. लेट्स रीड. इट इज प्रोबेबली एट dawn and dusk that Delhi offers the most beautiful part of itself. शायद ये प्रोबेबिलिटी है या ये कंफर्म है कि जो दिल्ली सनराइज के समय और सनसेट के समय बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, ऐसा इनका मानना है. I remember as a child going away from Delhi and my grandfather's house on holidays to hill stations. मुझे याद है कि जब हम छुट्टियों पर जाते थे हिल स्टेशन पर, दिल्ली से दूर जाते थे, फिर जब हम लौटते थे, when we returned, हम जब लौटते थे, it was always a night journey by train.
तो हमारी जर्नी बाय ट्रेन होती थी और ये नाइट में होती थी. My mother would shake us awake as we neared the Yamuna river. मेरी माँ, ऑथर इज सेइंग, मेरी माँ हमेशा हमें उठा देती थी. कब? जैसे ही हमारी ट्रेन यमुना रिवर के पास पहुंचती थी तो हमें वो जगा देती थी. Delhi lay just beyond it. You know, Delhi is situated on the bank of river Yamuna. तो दिल्ली उसके बिल्कुल बियॉन्ड है, करीब है. Flocks of squawking mynas and parrots would be circling the pink sky as the steam train traveled towards Delhi. And soon it was time for the morning tea. तो ये विंडो में से देखते थे बच्चे कि किस तरह से स्क्वाकिंग करते हुए चहचहाती हुई मैना, पैरट्स बिल्कुल दिखते, उनके फ्लॉक दिखते, उनके झुंड दिखते, वो पिंक स्काई में सर्कलिंग, घेरे में उड़ते रहते. आपने भी कभी देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं या तो वो वी का शेप बनाते हैं स्काई में या राउंड सर्किल में वो दौड़ उड़ते रहते हैं स्काई में. एज अ स्टीम, जैसे ही उनका स्टीम ट्रेन यानी कि जो ट्रेन होती हुआ करती थी वो स्टीम इंजन उसमें होता होगा, तो जैसे ही वो दिल्ली की ओर मूव करती वैसे वो जब देखते तो पिंक स्काई हो रहा होता. पिंक क्यों हो रहा होता? सनराइज का समय होता. तो पिंक स्काई होने के कारण, सनराइज का समय होने के कारण सारे जो बर्ड्स हैं, मैनास, पैरट्स एंड मेनी अदर बर्ड्स, वो स्काई में स्क्वाकिंग करते हुए उड़ते हुए दिखाई देते. और उसके बाद क्या होता? ट्रेन जो थी दिल्ली स्टेशन पे पहुंच रही होती और उनके लिए मॉर्निंग टी का समय होता. ओके, तो आप भी कभी दिल्ली कभी गए होंगे तो कभी शायद देखा होगा ये सीन कि जैसे दिल्ली ट्रेन पहुंचने वाली होती, कहीं पर भी ट्रेन पहुंचने वाली होती है तो मॉर्निंग का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग. उस समय अगर स्काई में देखें आप तो बहुत सारे बर्ड्स उड़ते रहते हैं. अपने घरों में भी कभी आप जल्दी उठ जाएं तो आप देखेंगे कि सुबह सुबह बर्ड्स उड़ जाते हैं. आपकी कई बार आवाज़, आपकी कई बार बर्ड्स की ट्विटरिंग की आवाज़ से ही आपकी आँख खुलती है. लेकिन आजकल शहरों में तो बर्ड्स दिखते नहीं हैं, लेकिन वो एरियाज़ जो थोड़ा सा जहाँ पे ट्रीज़ हैं या ओपन एरियाज़ है वहाँ पे आप बर्ड्स की आवाज़ को सुन सकते हैं. Now, second paragraph I am going to start. Tea was a simple affair, bought from vendors who marched up and down the train with a large kettle chanting hot tea, hot tea. बच्चों आप भी कभी ट्रेन में गए होंगे तो स्टेशन पे जैसे चाय गरम ऐसे बोलते हुए आपको वेंडर्स दिखते हैं. तो टी तो एक कॉमन चीज़ है जो कि सभी स्टेशन पर अवेलेबल रहती है. तो ये छोटे बच्चों को ज़्यादा ही क्रेज़ होता है इन बातों का. तो वो देखते हैं कि वो कैसे टी बेच रहे हैं. कैसे बोलते हैं वो? हॉट टी तो नहीं बोलते. कैसे बोलते हैं आप बोल के देख लीजिए. चाय, गरम चाय ऐसे बोलते हुए वो ट्रेन में इधर उधर घूमते, ट्रेन से उतर के दूसरे केबिन में जाते. तो ये सब उनको याद है. तो इट वॉज सर्व्ड इन टेराकोटा कप्स दैट एडेड टू द सुगरी मिल्की टी अ डिलीशियस फ्लेवर ऑफ देयर ओन. अच्छा, चाय अगर आप पीते हैं कप में तो उसका टेस्ट अलग होता है, और अगर आप उसको टेराकोटा के कप में पियेंगे, मीन्स जो क्ले के बने होते हैं, जो मिट्टी के बने होते हैं कप, कुल्हड़ कहते हैं उनको, उसमें अगर चाय मिलती है तो टेस्ट दूसरा होता है. उसमें जो शुगर होती है और जो मिल्की टी, उसका जो फ्लेवर होता है ना वो ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है. कभी आप ट्राई करिएगा. As soon as we had our tea, my mother would pull out her purse and take from it a generous amount of coins. जैसे ही हम लोग अपनी टी पी चुकते तो मेरी माँ क्या करती? अपना पर्स निकालती और पर्स से एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉइन्स निकालती. कॉइन्स मतलब सिक्के निकालती. दिस वॉज अ साइन दैट द ट्रेन वॉज अबाउट टू गो ओवर द यमुना ब्रिज. ये एक साइन होता, संकेत होता कि ट्रेन अब यमुना ब्रिज के ऊपर से जाने वाली है. Each child armed with a handful of coins would choose a position by a window. हम सभी भाई बहन, हर बच्चे को एक मुट्ठी भर की कॉइन्स मिलती और हम लोग क्या करते? हम लोग विंडो के पास पोजीशन ले लेते. आप भी शायद याद करो, आप भी कभी ट्रेन से गए होंगे तो चाहे रिवर गंगा पड़ी हो या रिवर यमुना हो, कोई भी रिवर पड़ती है तो मदर्स क्या करती हैं? बच्चों को कहती हैं हाथ जोड़ो. हाथ जोड़ना बताती है, कॉइन्स दे देती हैं और ऊपर से उतार के कॉइन्स
कहती हैं पानी में डालो, या आपने भी कभी कॉइन डाला होगा, तो वही काम इन्होंने भी किया है, तो इनको वो याद है। तो we would take one coin at a time and hurl it onto the holy current of the Yamuna. हम लोग एक बार में एक सिक्का लेते, उसको घुमा करके यमुना के पवित्र धारा में उसको फेंकते। If the coin hit the water, our mother told us, we would be blessed. तो ये ऑथर कह रही है कि अगर कॉइन वाटर को हिट करता, तो उनकी माँ ने बताया था कि अगर वो हिट करेगा मतलब है कि उनको ब्लेसिंग्स मिल गई। And if it hit a washerman beating clothes on a sandy island or the bridge, then no blessings could be expected. तो कह रहे हैं कि लेकिन यदि कॉइन ने वाटर को हिट नहीं किया, बल्कि उसने वॉशरमैन के जो कि क्लोथ्स को धो रहा है उसको हिट किया, या सैंडी आइलैंड को हिट किया, या ब्रिज पर पड़ा रह गया, तो हमें किसी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि हमको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो हमारी ये ट्राई होती थी, कोशिश होती थी कि हमारा कॉइन वाटर में ही जाए। We would try to get our blessings as quickly as possible because the approaching city called for our full attention. तो हम कोशिश करते थे कि हमें ब्लेसिंग्स मिल जाए, क्योंकि ब्लेसिंग्स मिले, हमारा कॉइन वाटर में गया और ट्रेन तो चल रही होती थी। ट्रेन जो थी वो चलती हुई तुरंत तुरंत के तुरंत प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती, और हमारा अटेंशन किस पे होता, जो सिटी, दिल्ली सिटी जो अब आने वाला होता, हमारा ध्यान उस पर भी जा रहा होता। विद द सन रेनिंग गोल्ड ऑन इट, क्योंकि उस समय सनराइज हो रहा होता, और सन की जो गोल्डन रेज है वो पूरे पूरे एटमॉस्फेयर में फैली होती। द डोम्स एंड मिनरेट्स of the 17th century Mughal capital looked like they might be in a miniature painting. बच्चों आपको ध्यान है दिल्ली के बराबर में कौन सा क्या चीज बनी है? यस, रेड फोर्ट। तो वो रेड फोर्ट दिखता उनको। 17th सेंचुरी की मुगल कैपिटल था दिल्ली। 17th सेंचुरी में मुगलों की कैपिटल थी दिल्ली, और यहाँ पर उन्होंने क्या बनवाया? रेड फोर्ट बनवाया। बच्चों रेड फोर्ट किसने बनवाया? यस, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो वो देखते कि उसके डोम्स पर, उसके मिनारेट्स पर सन की जो गोल्डन रेज है वो पड़ रही होती, और सारा का सारा एटमॉस्फेयर ऐसा लगता है कि मानो कोई पेंटिंग देख रहे हो। बहुत ही सुंदर पेंटिंग, कहीं रेज हो रही है, सन रेज हो रही है, कहीं बर्ड्स हैं, कहीं मिनरेट्स दिख रहे हैं, कहीं हमें उसके डोम्स शाइन होते हुए दिख रहे हैं, और उन पे कुछ लिखा होता है। रेड फोर्ट की जो भी मिनरेट्स हैं उस पे कुछ लिखा हुआ है, वो सब आकृतियाँ, कुछ उस पे फूल पत्ती बेटे बेलें बनी हुई हैं, वो सब एक प्रकार की पेंटिंग की तरह से दिखाई देती, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती। ठीक है, I think it is okay for today. Tomorrow I will continue this chapter. Okay, take care and goodbye.